ओके बेटा, वी वर डूइंग फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग मैंने आपको पहले ही बताया है कि फूड पॉइजनिंग इज अ कंडीशन and it can be due to consumption of spoiled food. Consumption of spoiled food. ठीक है. Sometimes spoiled food किससे हमें अगर food खराब है, we don't tend to take food. If it tastes bad, if it smells bad, we will not take that food. But sometimes the food may not be at that stage where you can feel the taste, bad taste or smell or any other deposition, but it has been spoiled by microorganisms. Microorganisms like bacteria, fungi. Okay, it has been spoiled by these microorganisms. They grow on this food. Microbes जो होते हैं, they grow. कहाँ से आ रहे हैं microbes? They are either coming from air or water, which is used for cooking the food. All right, maybe the vegetables have not been washed properly. Maybe the utensils in which the food is being cooked or being stored is not cleaned properly. It is cleaned with dirty water or it is not cleaned. तो ये सारे sources हैं जहाँ से कि food जो है वो spoil हो सकता है because of growth of microorganisms there. So microorganisms, they grow on food and they produce some toxic substance. They produce some toxic substances. Toxic मतलब जो कि not fit for consumption. They produce some toxic substances, making the food unfit for consumption. Making food unfit for consumption. अब इससे क्या हो जाएगा, जब अनफिट कंजम्पशन है लेकिन आपने कंज्यूम कर लिया, अब इससे क्या होगा कि either we will start vomiting or we will have stomach ache or we will have diarrhea. So it can be, all these symptoms can be, keep this in mind, it is not necessarily the loose motions, vomiting, stomach ache can be symptoms for other diseases also, but it can be due to consumption of spoiled food also. It can be due to food poisoning also. All right, so you must remember this. So so the food becomes unfit for consumption. If consumed, it will cause serious illness and even death. So हमें पता है कि फूड बाहर रखा हुआ, स्पेशली आजकल के मौसम में या गर्मियों के मौसम में, इट गेट्स स्पॉइल्ड वेरी इजीली. बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है. अगर कोई भी चीज बाहर रह जाती है तो वो स्पॉइल हो जाती है. तो अगर इतना जल्दी खाना, वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स बाहर पड़े हुए खराब हो जाते हैं, वी नीड टू कीप देम इन सेफ प्लेस सो एज टू कंज्यूम इट फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. नहीं तो हमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम जो भी खाना लेकर आ रहे हैं उसी टाइम कंज्यूम कर लें एंड दैट्स इट. अगर आपने नोट किया होगा तो इस सीजन में बहुत सारी जो पल्सेस होते हैं, अनकुक्ड पल्सेस होते हैं, वो भी स्पॉइल हो जाते हैं. जो हमारे घर में दालें पड़ी हुई है ना, वो भी ज्यादा स्टोर कर लेते हैं ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए. अगर हमने उनको फ्रीक्वेंटली नहीं ओपन किया वो भी खराब हो जाती हैं. द फूड आर्टिकल्स, जो भी हमने फूड बनाया है, अगर वो बाहर रह जाता है, ओपन में रह जाता है, तो इट गेट स्पॉइल्ड इन द वेरी नेक्स्ट टाइम. अगर आपने आफ्टरनून में कुक किया है तो इवनिंग तक वो खराब हो जाता है. अगर इफ यू आर नॉट अवेयर, यू शुड आस्क योर मदर कि व्हाट हैपेंस, है ना. अगर हमारा मिल्क हमने वी हैव लेफ्ट इट आउटसाइड, सो वी टेंड टू कंज्यूम इट इन द इवनिंग, इट गेट्स स्पॉइल्ड. या फिर अगर आपने शाम को बाहर रख दिया एंड ओवरनाइट बाहर रह गया, इट टेंड्स टू गेट स्पॉइल्ड. सो to prevent all these things, and to make the food safer for consumption over a long period of time, there is a strong need for the food to be preserved. Preserved का मतलब क्या है? Food preservation का मतलब क्या है? What do you mean by this food preservation?
फूड प्रिजर्वेशन, हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी पता हुआ है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू यूज प्रिजर्व एंड स्टोर फूड, ग्रेन्स को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, हमने मेथड्स पढ़े हुए हैं। वी ऑल्सो नो दैट अगर हम ब्रेड बाहर रख देते हैं घरों में आजकल 2 days के बाद में उसके ऊपर यू कैन सी द फंगस, है ना, दिखाई देने लगते हैं ब्राउन कलर के, चपाती बाहर रह जाती है तो उसके ऊपर कॉमनली है। और अगर आपने नहीं एक्सपीरियंस किया, यू कैन कीप वन स्मॉल पीस ऑफ maybe chapati or bread outside, leave it in open and you will see the growth of the microbe fungi over it within 1 or 2 days. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं। Who are the ones which are spoiling? The microbes spoil food. No one else is doing it. It is the microbes which are the culprit. Microbes are spoiling food. Spoiled food जो होता है, आपको कैसे पता लगता है कि फूड खराब हो गया? Can anyone unmute and tell me? Can any पहले raise your hand? How will you come to know that food is spoiled? Jatin, sir, please unmute Jatin. जयादित्य, सर तीनों बच्चों को, एक बच्चे को ना जिसने हैंड रेज किया, प्लीज अनम्यूट देम वन बाय वन। जतिन जी, मैम फूड में फंगस लग जाए या उसमें से स्मेल आने लग जाए। वेरी गुड, वन इंडिकेशन इज बैड स्मेल। अगर आपको फूड में से बैड स्मेल आ रही है, अगर हम नॉर्मली फूड हमारा ना अगर फूड में से अच्छी सी खुशबू आ रही है, हमारा भूख बढ़ जाती है, हमें बड़ा मजा आता है कि वो इतना टेस्टी यम्मी फूड, और कई बार आपको इतनी अच्छी खुशबू फूड से आती है कि आपको पता लग जाता है कि कौन सा फूड है। लेकिन अगर फूड में से बैड स्मेल आ रही है तो हम उसको कभी कंज्यूम नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज स्पॉइल्ड फूड, इट हैज बीन स्पॉइल्ड बाय माइक्रोब्स। वेरी गुड, अनम्यूट योरसेल्फ। जय आदित्य, कोई और इंडिकेशन जिससे आपको पता लगता है कि फूड खराब है? मैम इट टेस्ट बैड। हाँ जी मैम इट टेस्ट बैड। टेस्ट बैड, कई बार स्मेल नहीं आती है, लेकिन आपने माउथ में डाला ना, ये स्मेल कम भी होती होगी, आप नहीं भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन आपने जैसे ही माउथ में रखा फूड का टेस्ट अच्छा नहीं लगा आपको, सोर टेस्ट हो सकता है, कोई बिटर टेस्ट हो सकता है, मतलब वो खाने का वैसा टेस्ट नहीं होता है, तो आपको लगा नहीं यार ये तो गलत हो गया काम, ये खराब हो गया फूड, है ना, तो इट इज स्पॉइल्ड फूड। कोई और इंडिकेटर? आदित्य, म्यूट योरसेल्फ। हिमांशी, हिमांशी। Ma'am, green patches appear on food. हाँ जी, Green patches appear on food. वेरी गुड, कुछ ऐसी ऐसी हमें नजर आएंगी कोई चीजें, उसके ऊपर ग्रीन या ब्लैक या ब्राउन पैचेस जो हैं वो हमें लगने लग जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि फूड हैज बीन स्पॉइल्ड। अब जब वो स्टेज पहुंचती है तो फूड में ऑलरेडी एक स्मेल आ रही होती है, एक ऑलरेडी बैड टेस्ट आ रहा होता है, तो ये सारी चीजों से हमें पता लग जाता है कि फूड हैज बीन स्पॉइल्ड। आजकल तो आप देखते हो मैंगोज हमारे बाहर पड़े होंगे, वो भी अगर एक आधे दिन, या बनानास पड़े होते हैं तो भी आप नोट करते हो कि उनके ऊपर कुछ डेपोजिशन सी हो जाती है और धीरे धीरे वो सॉफ्ट से हो जाते हैं, कुछ वाटरी सब्सटेंस उसमें से आने लग जाता है ना, तो वो स्पॉइल हो जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप खाने के साथ में मैंगो का पिकल भी खाते हैं, मैंगो की चटनी भी खाते हैं, जो कि स्पॉइल नहीं होती है, जो कि स्पॉइल नहीं होती है। तो ऐसे कैसे है कि जो रॉ मैंगो है वो स्पॉइल नहीं हो रहा है व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड एज अ पिकल, बट the ripe mango is getting spoiled? So we have to know some common methods how we can preserve food, how we can preserve food. I'm giving you exactly 2 minutes from now, we'll do a small activity. I'm giving you 2 minutes from now, आपको कुछ चीजें कलेक्ट करनी है। I'm giving you a list of things which you have to collect. You can note down, you can note down, और उनमें से आप कोई 3-4 चीजें जो आपको आसानी से मिल रही है वो आप घर में कलेक्ट करके ले आए, अपने पास रखें। पहला आप लेकर आइए पिकल, सारा इतना बड़ा बॉटल नहीं, छोटा सा पिकल का बॉटल अगर आपके पास है, रेडीमेड पिकल का बॉटल है तो वो आप ले आइए, या दूसरा भी होममेड भी होगा तो भी ले आइए।
दूसरा आप लेके आइए सॉस, थर्ड आप लेके आइए जैम, फोर्थ आप लेकर आइए कोई शरबत पड़ा हुआ है, रूह अफ़ज़ा या कोई ऐसा आपके पास घर में पड़ा हुआ है। देन यू हैव टू गेट ड्राई फ्रूट अगर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। देन यू हैव टू, अगर कोई मुरब्बा पड़ा हुआ है, इतनी चीजें बहुत, ठीक है। वो इमीडिएटली रन बैक, ऐसे ही आप जाइए किचन में जाइए, go to dining table and collect these things and get it back within 2 minutes. Okay, I can see many of you have got the things back. All right, very good. Suknoor, Simran, those of them who have got the things, a few of them at least, जो भी चीजें आपको मिली हैं, not necessary all of things you can get it right now, but अगर आपको मिल गई हैं तो you can raise your digital thumbs so that we can come to know that you have got it. A few of them have not responded. Very good, Mannat. Shabash. Jatin has got it. All right. So those of them who have got it, Shabash beta. Okay, let us continue now. Okay, beta ji. Again, let us continue. Food, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, let us first see the pickle. You have got it. Pickle को चेक कीजिए. अगर आप नोट डाउन करेंगे पिकल को, तो पिकल में there are, जिनके पास रेडीमेड है, they can note down there is certain ingredients written over there. तो उसमें है एक एडिबल ऑयल एंड सॉल्ट. तो सॉल्ट एक बहुत कॉमन सॉल्ट एक बहुत कॉमन प्रेजर्वेटिव है, जिससे कि हम इनको फूड आइटम्स को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है. तो पहला है पिकल्स, जो कि हम सॉल्टिंग से करते हैं. तो यहाँ कॉमन सॉल्ट यूज करकर हम पिकल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं. ऑल्दो इसमें ऑयल भी यूज होता है, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी यूज होते हैं, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स वहां पर ज्यादा यूज किए जाते हैं जहां पर कि रेडीमेड पिकल इज टू बी मेड. घर वाले होममेड पिकल्स में देयर इज ओनली सॉल्ट एंड देयर इज ऑयल, ठीक है, टू प्रिजर्व द पिकल फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर आप इफ यू आस्क योर मदर, this might have been, or your grandmother, this might have been prepared few some time back, but it has not got spoiled. Although it has been kept outside only, you don't refrigerate, but it never gets spoiled. It is because of the salt which is being there, salt which is there, and oil which is there. इससे हम आंवला भी प्रिजर्व करते हैं, टैमरिंड भी प्रिजर्व कर सकते हैं. इवन सॉल्ट से हम मीट एंड फिश को भी प्रिजर्व करते हैं. मीट एंड फिश को भी हम सॉल्ट से प्रिजर्व करके बहुत लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, एंड जो है वो स्पॉइल नहीं होता है. तो यहाँ पर सॉल्ट जो है इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव. कॉमन सॉल्ट जो है दैट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है. नाउ कम टू द रेडीमेड पिकल, और उसमें भी बाद में हम आते हैं. पहले हम शुगर के साथ देख लेंगे. चेक इफ यू हैव गॉट जैम बॉटल. अगर आपके पास जैम है या स्क्वॉश है या रूह अफ़ज़ा है या कोई और शरबत है, उसके लेबल पर चेक कीजिए. देयर इज सेट अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन देयर. अगर आप देखते हो, आप कंज्यूम करते हो, आप जैम कंज्यूम करते हो, जेली कंज्यूम करते हो, शरबत कंज्यूम करते हो, तो आप देखते हो कि आपको बहुत थोड़ा सा उसे यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी शुगर होती है. तो शुगर इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, बिकॉज शुगर क्या करता है, सॉल्ट क्या करता है, इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट. मॉइस्चर यानी कि पानी. जो रॉ वेजिटेबल्स होते हैं ना, उनमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और अगर मॉइस्चर रहेगा तो हमें पता है कि वहां पर चांसेस ऑफ अटैक ऑफ माइक्रोब्स वुड बी हायर, ठीक है. तो जब हम पिकल भी बनाते हैं ना,
तो अगर आपने घर में, कई बच्चों ने नोट भी किया होगा कि पहले पिकल को, चाहे वो मैंगो का पिकल बना रहे हैं, तो उसको हम कट कर थोड़ी देर के लिए सन ड्राई करते हैं। सन ड्राई इसलिए करते हैं कि उसमें जो एक्सेस मॉइस्चर है वो निकल जाए। ठीक है, सन ड्राइंग से मॉइस्चर जो है, वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है और एक्सेस मॉइस्चर निकल जाता है, और सॉल्ट एंड ऑयल बाद में उसमें प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करते हैं। तो इसी तरह जो शुगर भी है, शुगर भी जो है वो रिड्यूसेस मॉइस्चर कंटेंट, जिससे कि मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस होने से ग्रोथ ऑफ माइक्रोब जो है वो इनहिबिट हो जाता है। इनहिबिट मतलब कि वो प्रिवेंट हो जाता है, रुक जाता है, तो उससे माइक्रोब्स उसमें ग्रो नहीं करेंगे और स्पॉइल नहीं कर पाएंगे। तो शुगर जो है reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria in the food, and ये बैक्टीरिया ये जो स्पॉइल करते हैं। तो इससे हम क्या प्रिजर्व करते हैं? जैम्स को, जेलीज को, शरबत को, ये सारे के सारे जो है हम शुगर से प्रिजर्व करते हैं। नाउ यूज एंड ऑयल एंड विनीगर जो है वो भी प्रिवेंट करता है स्पॉइलेज को। और मोर ओवर ऑयल, अगर आपने नोट किया होगा तो पिकल के ऊपर एक लेयर बनी है ऑयल की। ध्यान से देखिए, जो आपने पिकल लेकर आए हैं, एक लेयर होगी, एक्सेस में ऑयल उसमें प्रेजेंट होता है। और अगर आपके पास रेडीमेड पिकल है तो आप उसमें नोट कीजिए एक इंग्रेडिएंट उसमें विनीगर भी होगा। ठीक है, तो ये जो विनीगर और ऑयल जो उसमें प्रेजेंट है, ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ना, हमेशा आप नोट करोगे कि पिकल में ऊपर तक कंटेंट्स के ऊपर तक भी ऑयल होता है, ज्यादा ऑयल प्रेजेंट होता है। तो ये जो होता है कि एनवायरनमेंट देता है, क्योंकि ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते हैं, दिस वी ऑलरेडी नो, है ना, वी ऑलरेडी नो कि ऑयल और वाटर जो है वो मिक्स नहीं होते। तो ऑयल जो होता है ना वो, या विनीगर जो होता है, वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिस एनवायरनमेंट में ये माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते, दे कांट ग्रो इन दैट, दे लाइक मॉइस्चर। इसीलिए रेनी सीजन में इतनी सारी डिजीजेस होती हैं। इतने सारी डिजीजेस इसलिए होती हैं क्योंकि इस सीजन, ये सीजन बेस्ट माना जाता है, टेम्परेचर हाई है, मॉइस्चर भी हाई है, दोनों चीजें बेस्ट हैं फॉर द माइक्रोब्स टू ग्रो, फॉर द माइक्रोब्स टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। और ऑयल और विनीगर एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं इनसाइड द कंटेनर, जिसमें कि ये माइक्रोब्स अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए फूड जो है इनमें प्रिजर्व हो जाता है। इससे हम क्या क्या प्रिजर्व करते हैं? वी प्रिजर्व फ्रूट्स, वी प्रिजर्व मीट, ऑलराइट, वी इवन प्रिजर्व फिश यूजिंग विनीगर और इवन ऑयल। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स आपने, हमें पता है कोई भी चीज आजकल हमारे घर में आफ्टर यू हैव हैड योर मील, तो आपने नोट किया होगा, आपको कई बार इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि गो एंड कीप द लेफ्ट ओवर मे बी द दाल और वेजिटेबल और राइस और मिल्क और कर्ड, पुट इट इन देयर। आप कहाँ रख देते हैं? वी कीप इट इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है ना, तो इसका मतलब रेफ्रिजरेटर में हम जब स्टोर करते हैं तो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जो है वो कम होता है, दैट इज वेरी लो, और लो टेम्परेचर के ऊपर भी ये माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। लो टेम्परेचर में भी माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। तो माइक्रोब्स जो हैं दे डू नॉट गेट right temperature for multiplication, and hence we keep our food in refrigerator and to prevent it from getting spoiled, and एक तरह से फूड प्रिजर्व हो जाता है। आप 2-3 दिन तक आप उसको आसानी से रखकर आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, नॉट वेरी लॉन्ग। डीप फ्रीजर्स में आप इसको बहुत देर तक, आपने नोट किया होगा कईयों के घरों में भी होते हैं या बड़े बड़े स्टोर्स में होते हैं डीप फ्रीजर्स, जहां पर बहुत देर तक आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जितना लो टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा उसका जो इम्पैक्ट होगा और माइक्रोब वुड बी इवन ग्रेटर, माइक्रोब उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे एंड फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर टाइम। सिमिलरली आपने नोट किया होगा कि आप मिल्क लेकर आते हैं, है ना, मिल्क हम लेकर आते हैं अपने घरों में, तो उसको हम बॉईल करते हैं। बॉईल क्यों करते हैं? हम मिल्क इसलिए बॉईल करते हैं सो दैट इट डजंट गेट स्पॉइल्ड, it does not get spoiled. Yes, तो कई बच्चों के घरों में जो मिल्क है we get it from vendor or we get it in
packets. I want to know those of them who are at home in packets. In packets. अगर आपने उसको नोट किया है, raise your hand. Those of them who get milk at home in packets or in cartons, not from vendor or from some other source. Jay Aditya ji, हाँ जी, please sir, please unmute Jay Aditya. हाँ जी, Jay Aditya ji, this milk in packets. Yes, ma'am. If you have noted, if you would have noted, you can keep it as such for a small period of time without getting spoiled. Yes or no? Yes or no? Yes. अगर आपने नोट नहीं किया तो आप ये नोट करेंगे कि ये जो पैकेट में मिल्क आता है ना, इट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड. इवन स्मॉल कार्टन्स में भी आने लगे. इट कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ अ मंथ. जो पैकेट्स में आता है तो वो तो लिखा होता है उसके ऊपर, इट इज गुड बिफोर 1 day. ठीक है ना. तो ये जो मिल्क होता है, दैट मिल्क इज कॉल्ड एज पैस्चराइज्ड मिल्क. पैस्चराइजेशन एक प्रोसेस है. प्लीज म्यूट योरसेल्फ माय डियर. वेरी गुड. Pasteurization एक process है. It is a process wherein the milk is consumed without boiling. Pasteurized milk को आप boiling किए बिना भी consume कर सकते हैं, because it is free from microbe. हम क्यों boil करते हैं? क्योंकि हम boiling करेंगे high temperature पर microbes जो है वो kill हो जाएंगे. इसलिए हम उसको milk को boil करते हैं या खाने को cook करते हैं. तो जितने microbes होते हैं वो they die and you can easily safely consume it. तो मिल्क को भी हम इसलिए बॉईल करते हैं. लेकिन पैस्चराइज्ड मिल्क जो है वो विदाउट बॉइलिंग यू कैन कंज्यूम. अगर हम उसको विदाउट बॉइलिंग कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब इट इज फ्री ऑफ माइक्रोब्स. तो वो बनाया कैसे जाता है? हाउ इज इट मेड? मिल्क इज हीटेड इन बिग फैक्ट्रीज या जहां पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है, वहां पर मिल्क को हीट किया जाता है टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट किया जाता है फॉर 15 to 30 सेकेंड्स. कितनी देर के लिए? 15 to 30 सेकेंड्स के लिए इसको बहुत हाई टेम्परेचर 70 डिग्रीज के ऊपर हीट किया जाता है. एंड देन सडनली, हम तो घर में मिल्क बॉईल करते हैं तो हम उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे, है ना. लेकिन यहाँ पर जैसे उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे लाया जाता है, 15-30 सेकेंड्स उसको बॉईल किया जाता है और इमीडिएटली निकालकर उसको चिल कर उसको स्टोर कर दिया जाता है. So there is no scope for the microbes to grow back again. It prevents the growth of microbes, and this process is known as pasteurization and was discovered by, again, who was the one who discovered the process of pasteurization? It is the scientist Louis Pasteur. ठीक है. और इसीलिए ये जो मिल्क होता है इसको हम विदाउट बॉइलिंग भी कंज्यूम कर सकते हैं. अगर हम मिल्क को बॉईल कर बाहर छोड़ देते हैं ना, तो जब हमने मिल्क को बॉईल किया तब उसमें माइक्रोब्स किल हो गए, और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर लो होता जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आएगा, अगेन द माइक्रोब्स फ्रॉम एयर कैन एंटर इट एंड दे नीड नॉट स्पॉइल इट. बट ठंडा होने के बाद में हमें रेफ्रिजरेटर में उसको रखना पड़ता है, so that more microbes do not grow into it and does not spoil it. अगर हम उसे बाहर छोड़ देते हैं, it gets spoiled. Again, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे आते ही एयर से माइक्रोब्स के अंदर एंटर करते हैं एंड दे स्पॉइल द फूड. इसीलिए पैस्चराइज्ड मिल्क रूम टेम्परेचर पे स्पॉइल नहीं होता है, बट ड्यू टू हाई टेम्परेचर हियर राइट नाउ वी नीड टू कीप इवन पैस्चराइज्ड मिल्क. हम लोग के वी हैव अ टेंडेंसी टू इवन बॉयल पैस्चराइज्ड मिल्क. पैस्चराइज्ड मिल्क को बॉयल करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वी एज इंडियंस बॉयल इवन पैस्चराइज्ड मिल्क अगेन, एंड फिर हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं. अगर हम उसको डायरेक्टली भी रख दें और उसको कंज्यूम डायरेक्टली करें, देयर इज नो इशू, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन बॉइल्ड एंड इट हैज ऑलरेडी बीन cooled to a very low temperature. The last method of packing, and one more method is left. We'll be discussing it tomorrow. I guess we'll run out of time, but let us see. हम ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं, रेजिन्स आप कंज्यूम करते हो, जिसको आप कहते हो किशमिश, है ना, सौगी. You know how it is formed? It is formed from grapes. आप grapes भी खाते हो, आप raisins भी खाते हो. दोनों में डिफरेंस आपको पता लगता है कोई? Can anyone tell me?
रेज योर हैंड। रेजिन्स पे आपने कंज्यूम किए, ग्रेप्स पे कंज्यूम किए। रेजिन्स ग्रेप्स से बनते हैं। Can anyone tell me? No? No one? ग्रेप्स में से जब आप ग्रेप्स खाते हो तो उसमें कितना जूस आता है ना? Is it juicy? Yes or no? Very good. Sukhni is saying yes. Taki, they don't even raise their digital thumbs so that I can come to know they have understood or not. Very good, very good, very good, very good. तो जब रेजिन्स को हम ड्राई कर देते हैं, उसका मॉइस्चर रिमूव कर देते हैं, तो वो सॉरी ग्रेप्स में से जब हम मॉइस्चर रिमूव कर देते हैं, देन इट बिकम्स रेजिन। तो इसका मतलब कि वी कैन गेट ड्राई फ्रूट्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स and then we have to remove the moisture content from there, and thus we will get the dry fruits. So dry fruits name ही suggest कर रहा है, dry fruits are obtained from fruits जिसमें से कि moisture remove कर दिया गया है, ठीक है, जिसमें से कि water remove कर दिया गया है, उनको dehydrate कर दिया गया है, and that is how हम बहुत सारी मेथी की leaves use करते हैं, spices use करते हैं, ये सारे के सारे पैकेट्स में सील्ड होते हैं, एंड दे हैव बीन, उनका मॉइस्चर रिमूव करके हम उनको यूज कर लेते हैं। ऑलराइट, उनका मॉइस्चर कंटेंट सन ड्राइंग से कर सकते हैं, या इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में भी उसको मॉइस्चर को रिमूव कर दिया जाता है टू मेक इट ड्राई। एंड हमें पता है कि रेजिन्स बाहर पड़े हुए खराब नहीं होते हमारे, लेकिन ग्रेप्स जरूर खराब हो जाएंगे। तो ग्रेप्स में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, एंड हेंस इट गेट्स स्पॉइल्ड, बिकॉज मॉइस्चर जहां पर होगा ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स वहां पर होंगे, जहां पर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स होंगे वहां फूड खराब हो जाएगा। तो जब आपने माइक्रोब में से जब आपने खाने में से ड्राई कर दिया उसे, तो वो ड्राई फ्रूट बन गए, और ड्राई फ्रूट में मॉइस्चर नहीं है तो वहां पर माइक्रोब अटैक नहीं करेगा, so it can be preserved for a very long time without keeping it in refrigerator or any other preservative भी यूज करने की जरूरत नहीं है उसके साथ। बादाम देखिए हमारे घर में ऐसे ही पड़े होते हैं ना, आमंड्स कितनी देर पड़े रहते हैं, खराब नहीं होते हैं, कैशूज पड़े रहते हैं, they are all dry fruits, they are actually fruits from which the water has been removed, that process is called dehydration। मेथी लीव्स को हम यूज करते हैं, डिहाइड्रेट फूड को हम पैकेट्स में सील